प्लीज़ बताइए इनमें भगवान आपको क्यों नहीं दिख रहे हैं? इनका पूजा हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर इनमें भगवान अगर दिख रहा है तो क्यों हम इसे मान ले कि हमारे भगवान एक रिलीफ सेंटर में है? अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा है, तब बोला है फिर से दिवाली मनाने के लिए। आप मनाएंगे? कैसे मनाएंगे? हाँ, हालत ऐसी है तो कैसे मनाएंगे? हम लोग का जगह में स्टेट में हम लोग रिफ्यूजी के हिंसा में उधर उधर भाग गया। का लड़ाई का अंदर में क्या धूमधाम का फेस्टिवल कैसे मनाएगा? नहीं मनाएगा। टिकट बस। हाँ, मैं जाऊँ? टिकट 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 चलो चलो, बस चलाओ बस चलाओ बस चलाओ। Betrayed by mainstream media for Manipur. I know you would hate me for saying this, but independent journalism is the only hope. Betrayed by mainstream media. A nation which is now celebrating World Cup, inauguration of a lot of things. You know what I mean? A nation which had been celebrating election victories. The same nation has forgotten about Manipur. And it has only happened because of mainstream media. ठंड उतनी ज़्यादा नहीं है मणिपुर में, दिल्ली से लगभग एक ही है. Saurav Shukla is a renowned journalist, and saying goodbye wasn't easy, but then he said goodbye to his previous organization and thereafter started Red Mic with Sankat Upadhyay. I'm so glad. Welcome to the world. Absolutely, welcome to the world. And apart from that, the kind of stories, I've been following your stuff from Manipur, and today when I'm in Manipur, you helped me out reaching to these people who are living in refugee camp from last 8 months. And these stories are chilling. I'm coming from Delhi and temperature is 3-4 degrees. I think same as Imphal. People are home. They celebrated New Year, Christmas. Now preparations for Ram Mandir is also underway. There is Akshat distribution and people are saying that we'll be happy on 22nd that Ram is coming back. But when I come here and I see these people, few of them said that they have no hope. Their houses were burnt. And look at them, look at these faces. They're saying that they have food here, they have a shelter. Apart from that, they have nothing. Look at these children. It is just my heart is crying because what I've seen, what is happening there, and in Delhi, Manipur people don't exist. Intervention should be there from the supreme level. Prime Minister should take initiative. The way I'm very happy that credit of Ram Mandir building is going to him, and I'm very happy it should go to him. And but building Manipur is also important. Rebuilding Manipur is also very important and more important than building Ram Mandir, because राम तो हम सबके अंदर है ना. जितने राम अयोध्या में हैं उतने राम तमाल के अंदर भी हैं, और उतने ही राम इन सब हज़ारों लोगों के दिल में हैं. कहते हैं राम जी को उनका घर मिल गया, राम जी को मंदिर मिल रहा है, इनको इनका घर वापस नहीं मिलना चाहिए. राम मंदिर हो रहा है सर, राम मंदिर के इनॉग्रेशन हो रहा है, देश भर में जश्न मनाने के लिए सबको निमंत्रण किया गया है. मणिपुर में ऐसा कुछ होगा सर? इस रिलीफ कैंप में कुछ नहीं, ऐसा तो हम लोग भी सुना है कि ये 22 जनवरी में राम मंदिर का ये होने वाला है, वो अलर्ट है. लेकिन हम लोग जो इनमें है वो जो ये भाग के आया है वो लोग के माइंड में ये सब सेटअप नहीं है. यहाँ मैक्सिमम यहाँ लोग जो है डे टू डे सर्वाइव करने के लिए सोच में है. तो 22 जनवरी को वो हम लोग क्या करेंगे, दिल से दुआ मांगेंगे, उसके सिवा हम लोग कुछ नहीं कर पाए. टूटे हुए दिल से दुआ निकलेगा. हाँ, टूटे हुए दिल से दुआ निकलेगा जरूर.
this emptiness around here would haunt you. It's huge. It is huge. It is essentially a marketplace which holds trade fairs and all. But for the past 7 months and more, 8 months and more, this has been a relief center. The size, it's so mammoth. But trust to me, even at night, this too feels like a small cocoon for hundreds of people staying here. They're all displaced. And this is how a Sunday morning looks like here at this relief center. You have got TVs fixed on either side, this side and over there, and children are enjoying TV viewing because they have nothing else to do. They have nothing else to do. आप कहाँ से हैं? कांकोपी से। कब आए इधर? याद तो नहीं है, अब 6-7-8 महीना तो हो गए। अच्छा, घर वापस जाने का कोई संभावना? हाँ वो तो है, लेकिन पता नहीं अभी तक। घर जाना चाहते हैं आप? हाँ कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। और हस्बैंड? हाँ है। कुछ काम मिला है इधर? जी नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है। सरकार से कोई मदद? हाँ अभी थोड़ी थोड़ी चावल और दाल वही, और उतना तो नहीं है। कोई आया? सब मुख्यमंत्री आया था इधर? चीफ मिनिस्टर आया? बीरेन सिंह? नहीं अभी तक नहीं आए। दिवाली मना पाए थे आप? नहीं मना पाए। क्रिसमस? ना। न्यू ईयर? ना, कुछ भी नहीं। और ये 22 तारीख को राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा है, जानते हैं आप? अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा है, तब बोला है फिर से दिवाली मनाने के लिए। आप मनाएंगे? कैसे मनाएंगे? हाँ हालत ऐसी है तो कैसे मनाएंगे? क्या कहेंगे प्रभु राम से? कि कृपा करे हम लोग को अच्छे से, क्या अच्छे से घर पे रहने के लिए, और शुक्र है कि शांति हो जाए, मणिपुर में शांति ला सके, इसलिए। कुमकम जी, आप कहाँ से हैं? हम कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट का सेरो विलेज से है। अच्छा, आपका घर? मेरा घर तो जल गया सब। पूरा परिवार लेके आ गया? परिवार लेकर आया। कितने महीनों से है इधर? अभी 8 महीना हो गया। सरकार ने कुछ बोला क्या करेंगे इसके बाद? घर मिलेगा? हाँ सरकार ने तो बोल रहा है अभी घर बना कर दे देगा, लेकिन अभी तक दिया अभी तक दिया नहीं है। सिर्फ आवाज़ तो अखबार में सुन रहा है देगा देगा। हाँ। तो अभी तक तो बनाया नहीं है। मुख्यमंत्री आए इधर कभी? मुख्यमंत्री तो नहीं आया, तो आना है तो आया नहीं है। कोई आया है इधर पे? यहाँ में आया गवर्नर, तो हमारा मणिपुर गवर्नर तो आया है। अच्छा, प्रधानमंत्री अभी तक नहीं आए? हाँ प्रधानमंत्री तो अभी तक नहीं आया। दुख लगा आपको इससे? हम सिर्फ दुख नहीं लगा, सब मणिपुर का सब हमारा यहाँ में सब रहता है, वो सब लोग दुख रखेगा। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री को अगर देख रहे हैं आज? प्रधानमंत्री को सिर्फ एक बार मणिपुर में आने के लिए चाहता हूँ। हमारा मणिपुर का सिचुएशन देखकर एक बार देखिए, उसका आँख लगाकर एक बार देखिए। सिर्फ वो चाहता हूँ, हमारा मणिपुर का शांति के लिए एक बार कर लीजिए। अभी पूरा देश में जश्न है कि राम मंदिर इनॉग्रेट होगा, आपको मालूम है? तो खबर तो अखबार में नहीं वो सुना है, लेकिन इसका तो मालूम नहीं है। बोला गया 22 तारीख को इधर पे सब घर में दिए जलाए। आपका ये रिलीफ सेंटर में आप लोग दिए जलाएंगे? तो बोलना है तो हमारा प्रधानमंत्री है भारत का, तो जो बोलेगा तो हमारा तो करना ही पड़ता है। हम लोग एक बार आता है, हम लोग कितने साल हो गए इधर। माफ़ी चाहते उसके लिए? माफ़ी चाहते उसके लिए? कल परसों इधर बम लगाता है, बंदूक लगाता है। कौन किसने फायदा करता है हम लोग को? कौन किसने गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? हम लोग को इंडिया नहीं है। हम लोग
देख लीजिए कल परसों भी इतना कोई नहीं मार आया, दिया। कोई नहीं आया अभी तक। आता है बहुत, खाली बार की बात जाता है, कुछ भी काम नहीं किया था ये जी। आप लोग नहीं देखा है, देखा है। मेरा सामने काटा है बहुत, सब निकलता है, सब धमाली करता है। आप लोग का इंडिया में, दिल्ली में तो नहीं किया है, मणिपुर तक जैसा काम। इधर में तो क्या बोलेगा, आप लोग प्रेम करो ना। हम लोग यहाँ पसीना निकाल के खुल करके देखो आप, कितना मर गया। अभी तो क्या करता है हम लोग का मिनिस्टर। इस बार 22 तारीख को राम मंदिर उद्घाटन होगा, हाँ मालूम है आपको? मालूम है। अभी तक भगवान क्या करते हैं, भगवान का बात नहीं चलता है अभी तक। भगवान नहीं हो सकता है हम बोलता है, इसी के ख्याल, मेरा ख्याल में दिन में अभी तक क्या करता है मेरा हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, अभी तक क्या करता है। क्या कहेंगे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को, क्या कहेंगे, हमको क्या कहना? ये शादी करने का दिल था हम। आप लोग तो दूर में रहता है, हम लोग नज़दीक में रहता है, सब मालूम होगा। आप लोग देख रहे हैं, बाप रे बोलेगा। अभी यहाँ खून के खून, नदी की का मत बच्चा है। हम कोई दूर के नहीं हैं, हम भी अपने हैं। You know how you have lost your identity and you have earned one? C18, C17, C15, C16, C19, and C stands for cubicle. So these cubicle numbers, they kind of give identity to you now. Where do you stay? I stay at C18. Where do you stay? I stay in C19. Where do you live? What's your address? C17. I've been continuously asking, why don't our leaders come and live a day here at a relief center? एक दिन के लिए अय्याशी भूल जाइए, एक दिन के लिए जो लग्जरी है उसको भूल जाइए, एक दिन के लिए भूल जाइए कि आपको सुबह उठ के गर्म पानी चाहिए, एक दिन के लिए भूल जाइए कि आपको सुबह उठ के ब्रेकफास्ट चाहिए, एक दिन के लिए भूल जाइए कि आपको रात को सोने का टाइम कंफर्टर चाहिए। ब्लॉक सी, वाटर फिलिंग ड्यूटी, दिस इज़ अ ड्यूटी रोस्टर। एक दिन के लिए खुद को इधर पे देख लीजिए प्लीज़, एक दिन के लिए, एक दिन के लिए आइए ना, रह लीजिए ऐसा एक क्यूबिकल के अंदर, बन जाइए C19। एक दिन के लिए इस घर में जाइए, एक दिन के लिए नहा लीजिए इस ठंडे पानी से, ये ठंडे पानी से नहा लीजिए एक दिन के लिए। यू स्टे हियर C3? हाँ, आपका नाम क्या है सर? एल शरद। अच्छा, कहाँ पे था आपका घर? कांगपुकपी। कांगपुकपी। कब आए उधर से आप? जून 19 में इधर पकड़ा। जून 19 को पूरा परिवार के साथ आ गए? ना, मेरा बच्चा के साथ। और बाकी जगह में है। अभी भी उधर है? कौन देख रहा है उनको? वो लोग परिवार का घर में अभी था। घर मतलब वो लोग, कुकी लड़की है ना, मेरा लड़की भी। आपका बीवी कुकी है? वो उधर ही है? हाँ। उनके साथ कोई बच्चा है आपका? नहीं, सिर्फ वो उधर है। तो आप अपने बच्चे को लेके आ गए, मिल पाए बीच में और बीवी से? नहीं, कब पहला तो एक बार दो बार तो फ़ोन में बात किया ना, वो लोग ने फ़ोन मत करो, लड़की लोग सब मारेगा बोला, इसके लिए फ़ोन ऑफ कर दिया। अभी फ़ोन में भी बात नहीं हो पा रहा है। कितने साल का शादी है आपका? शादी तो बहुत साल हो गया, 1993 में शादी किया है। लड़ाई एक शादी के बीच में आ गया, प्यार के बीच में आ गया ना, वो लोग तो काम किया ना ऐसे, मणिपुरी में शादी किया, सब लड़की भी मारेगा लड़का भी मारेगा बोला है, अनाउंस किया है, लाउड स्पीकर में बात किया है। क्या बोलते हैं जब बच्चा पूछता है माँ कहाँ पे है? पूछा है, बोला है उधर ही है, लेकिन अभी लड़ाई भी बच्चा लोग भी मालूम है ना, बच्चे को भी मालूम है। उसके लिए वो लोग तो खराब आदमी है, वो लोग क्या करेगा, बड़ा होने के टाइम में जाएगा लेकर आएगा बोला। बोला है? हाँ, बड़ा होके माँ को लेके आएगा। आपने इस बार दिवाली मनाया? नहीं, दिवाली सब मणिपुरी का चाको वो भी नहीं, पूरा छुट्टी हो गया ना। ये 22 तारीख को राम मंदिर का हो रहा है,
तो बोला गया कि 22 तारीख को फिर से दिवाली मनाया जाएगा जनवरी को, आप मनाएंगे? ना सर, नहीं बनाएगा। अभी तो क्या करेगा, हम लोग का जगह में, स्टेट में हम लोग रिफ्यूजी के हिंसा में उधर उधर भाग गया, का लड़ाई का अंदर में क्या धूमधाम का फेस्टिवल कैसे मंगेगा, नहीं मंगाएगा। This man is married to a Kuki woman, and after violence broke out, the wife had stayed back in Kangpukpi, and he had to save himself and the lives of the children, and thus he landed up here. This is his new identity. This is his new identity. You must come and just knock on the doors here. The sound that would reverberate is of helplessness. The response that you would hear from that knock is of a helpless voice. They are still following the ritual of offering respect to the departed souls, and this is part of the mourning process. Shraddh जिसको बोला जाता है, during the entire course of mourning phase, in several customs, the ritual is you offer some food as a mark of respect for the departed soul, because it is considered before the soul finally is completely freed and attains moksha, there is an interim period where the departed soul is longing for the world as much as the world is longing for them. The loved ones in this world are longing for them. And in between, in this interim period, the ritual which is followed is offering them food to let them know that they have not been forgotten, to let them know that they still stay in our hearts. Hello, hey! Huh? Ah! Whoa! हाँ? आपको चाहिए? आ जाओ। उल्टा नहीं, ओके, आ जाओ। कौन जाएगा? मर गया मैं, रुक जा। तो she become a child. I love spending time with them. Ow! I only hope and pray they keep smiling like this. I only hope and pray कि इनमें भगवान सबको दिखे. I hope and pray that इनसे अपनी नाम और धर्म ना पूछा जाए. I only hope and pray they grow up like an Indian with no memory of the violence that their families have witnessed and the violence that has brought them here. Please बताइए इनमें भगवान आपको क्यों नहीं दिख रहे हैं? इनका पूजा हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर इनमें भगवान अगर दिख रहा है तो क्यों हम इसे मान ले कि हमारे भगवान एक रिलीफ सेंटर में है? भगवान को अगर अपने घर मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, 3 बच्चे जो भगवान के देन हैं वो बेघर होके एक रिलीफ सेंटर में अगर जीना पड़े इनको, क्या ये हमारा सौभाग्य है? Is this our blessing? Is this what we should celebrate? रोना नहीं, ayo. When you see a child at this relief center, do you really want to ask the child as whether the child belongs to this community or that community? Tell me honestly. For me, they are just the children, blessings of the God. And if these children have an uncertain future, my fear is, will my God be equally a victim of an uncertain future? And that is unacceptable. इनमें भगवान बसते हैं, इनमें रब दिखते हैं. With video journalist Ronnie Shatra here in Imphal. This is Tamal Shah for News the Truth, NTT.